MapReduce fundamental, writing a Hadoop MapReduce example, learning the different ways to write MapReduce in R, integrating R and Hadoop, the RHIP architecture and RH Hadoop. इतना ये सभी these are the contents of second unit. Basics of MapReduce. MapReduce is one of the core building blocks of processing in the Hadoop framework. MapReduce processing block है and that is used in the Hadoop framework. And Google released a paper on MapReduce technology in December 2004. This became the genesis of the Hadoop processing model, that paper. And MapReduce is a programming model that allows us to perform parallel and distributed processing on huge data sets. So MapReduce is used for performing data processing on large amount of data sets or huge data sets. What is the parallel and distributed processing in traditional way? मतलब पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है वो ट्रेडिशनल वे में कैसे होती है और उसमें कुछ चैलेंजेस है, तो वो ओवरकम करने के लिए MapReduce यूज होता है. MapReduce जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया. So this is the diagram for parallel and distributed processing in a traditional way. Very big data can be split in small amount of data, and from that split data matches can be occurred and we get output from the all matches. One example here I am going to explain for processing parallel and distributed processing in traditional way. Let us take an example where I have a weather log containing the daily average temperature of the years from 2000 to 2015. हमें क्या करना है, डेली एवरेज टेम्परेचर कितना है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम वेदर लॉग, जो डेटाबेस है वेदर लॉग उससे. और हर एक कौन से ईयर तक 2000 टू 2015 तक वो ईयर में एवरेज टेम्परेचर, डेली एवरेज टेम्परेचर कितना है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम in a traditional way. So calculate the day having the highest temperature each year. Calculate क्या करना है, highest temperature, the day having the highest temperature each year. हर एक ईयर में कौन से डे को हाईएस्ट टेम्परेचर था वो कैलकुलेट करना. So just like in the traditional way, I will split the data into smaller parts और blocks and store them in different machines. तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, जब भी पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती तो उसमें जो भी डेटा है उनको स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में और ब्लॉक्स में और उसको डिफरेंट मशीन पे स्टोर किया जाता. देन आई विल फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन ईच पार्ट स्टोर्ड इन द करस्पॉन्डिंग मशीन. मतलब जो भी डेटा है उसको पहले हम डिफरेंट मशीन पे स्टोर करेंगे, उसके बाद उसमें से हर एक पार्ट में मतलब करस्पॉन्डिंग कौन से मशीन के ब्लॉक में हाईएस्ट टेम्परेचर वाला डेटा है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है हर एक मशीन से उसको कंबाइन करेंगे. तो एट लास्ट आई विल कंबाइन द रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द मशीन टू हैव द फाइनल आउटपुट. तो दिस वे से जो है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है ट्रेडिशनल वे. तो इसमें कुछ चैलेंजेस ऑकर होते हैं, तो वो चैलेंजेस हमें ओवरकम करना है, इसलिए हम MapReduce कंसेप्ट यूज करते हैं. चैलेंजेस associated with this traditional approach are critical path problem, reliability problem, equal split issue, single split may fail, and aggregation of the result problem. So what is the critical path problem? It is the amount of time taken to finish the job without delaying the next milestone or actual completion date.
So if any of the machine delay the job, the whole work gets delayed. So this is the critical path problem. Means if मतलब हम जो डेटा स्टोर करने वाले हैं, डेटा को स्प्लिट करेंगे और उसको क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मशीन में स्टोर करेंगे, फिर उससे मैच करेंगे कि कौन से जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो कौन से मशीन में कौन से ब्लॉक में अवेलेबल है, और जैसे ही वो ब्लॉक मिल जाता है तो उसको हम कंबाइन करेंगे. तो ये अगर एक मशीन रिजल्ट डिस्प्ले करने में डिले करती है उसका जॉब परफॉर्म करने में, तो होल जो वर्क है वो भी डिलेड हो जाता है. तो दिस इज द वन चैलेंज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल अप्रोच. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी प्रॉब्लम. व्हाट इफ any of the machines which are working with a part of data fails, the management of this failover becomes a challenge. अगर कोई भी मशीन जिसमें हमारा डेटा स्टोर है वो मशीन अगर फेल हो जाती, तो ये जो फेल ओवर है उसका मैनेजमेंट करना, उसको ओवरकम करना, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज. दैट इज द रिलायबिलिटी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इशू है इक्वल स्प्लिट इशू. इक्वल स्प्लिट इशू मीन्स जो भी डेटा हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे डिवाइड करेंगे. मतलब कोई मशीन पे ज्यादा डेटा स्टोर होगा, कोई मशीन पे कम डेटा स्टोर होगा, तो ऐसे ना होके उसमें इक्वल स्प्लिट करना चाहिए. लेकिन ये जब भी डेटा स्मॉलर चंक्स में डिवाइड होता है तो उस टाइम क्या होता है, मशीन गेट्स इवन पार्ट ऑफ द डेटा टू वर्क विथ. मतलब उसके पास इवन कोई डेटा पहले से रहता है. तो इन अदर वर्ड्स, हाउ टू इक्वली डिवाइड द डेटा सच दैट नो इंडिविजुअल मशीन इज ओवरलोडेड और अंडर यूटिलाइज. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब भी हम डेटा को स्प्लिट करेंगे तो कोई मशीन के पास बहुत सारा डेटा होगा और कोई मशीन के पास कुछ भी डेटा नहीं होगा. तो उसकी वजह से जिसके जो मशीन के पास ज्यादा डेटा होगा वो ओवरलोडेड हो जाएगी, और जो मशीन के पास डेटा है ही नहीं तो वो जो है अंडर यूटिलाइज रहेगी. तो ये इशू ट्रेडिशनल एंड पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच में ऑकर होता है. नेक्स्ट है सिंगल स्प्लिट में फेल. इफ एनी ऑफ द मशीन्स फेल्स टू प्रोवाइड द आउटपुट, आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द रिजल्ट. सिंगल मशीन भी फेल हो गई आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, तो जो कंबाइंड रिजल्ट मिलता है वो कैलकुलेट करने में कैलकुलेट नहीं होता. So there should be a mechanism to ensure this fault tolerance capability of the system. Aggregation of the result is the one of the challenge. There should be a mechanism to aggregate the result generated by each of the machines to produce the final output. जो भी final output है produced by the machine, that will be generated by the mechanism for aggregating the result. So these are the challenges associated with the parallel and distributed computing या processing. तो ये ओवरकम करने के लिए मैप रिड्यूस यूज होता है. तो व्हाट इज द मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर. मतलब मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर क्या है, मैप रिड्यूस क्या है. मैप रिड्यूस इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड ओवर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. मैप रिड्यूस एंड हडूप के दो फीचर्स मेन पढ़ने हैं हमें, एक पढ़ चुके, ये सेकंड. तो लास्ट लेक्चर में कौन सा पढ़े थे, HDFS आर्किटेक्चर. HDFS. एंड अभी हम पढ़ रहे हैं मैप रिड्यूस. तो HDFS भी कुछ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. एंड मैप रिड्यूस इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड ओवर master slave architecture. Classic MapReduce contains job submission, job initialization, task assignment, task execution, progress and status update, and job completion related activities, which are mainly managed by the job tracker node and executed by task tracker. MapReduce में 2 टाइप के नोड होते हैं, जॉब ट्रैकर नोड एंड टास्क ट्रैकर नोड. जॉब ट्रैकर नोड क्या करता है,
जॉब सबमिशन, जॉब इनिशियलाइजेशन, टास्क असाइनमेंट, टास्क एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड स्टेटस अपडेट एंड जॉब कंप्लीशन रिलेटेड एक्टिविटी, ये सभी मैनेज करता है जॉब ट्रैकर नोड एंड these activities are executed by task tracker. Client application submits a job to the job tracker, then input is divided across the cluster. This is the master slave architecture. तो क्लाइंट जो है वो क्या करेगा, जॉब ट्रैकर को सबमिट करेगा और ये होगा इनपुट, जो भी एप्लीकेशन सबमिट करेगा जॉब टू द जॉब ट्रैकर, that is the input, and this input is divided across the cluster. The job tracker then calculates the number of map and reducer to be processed. It commands the task tracker to start executing the job. जॉब ट्रैकर क्या करेगा, कमांड करेगा किसको, टास्क ट्रैकर को, टू एग्जीक्यूटिंग द जॉब. The task tracker copies the resources to a local machine and launches JVM to map and reduce program over the data. Along with this, the task tracker periodically sends updates to the job tracker, which can be considered as the heartbeat that helps to update job ID, job status and uses of the resources. तो मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो वर्किंग करते हैं MapReduce आर्किटेक्चर में, that is जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर. तो जॉब ट्रैकर है वो क्लाइंट एप्लीकेशन सबमिट करता है जॉब ट्रैकर को, और जो भी एप्लीकेशन है, जो भी जॉब है वो डिवाइड करते हैं अक्रॉस द क्लस्टर. और टास्क ट्रैकर क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टास्क ट्रैकर? टास्क ट्रैकर, हाँ, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द जॉब, ये रोल है टास्क ट्रैकर का. MapReduce is a programming model. It is the programming model used for efficient processing in parallel over large data set in a distributed manner. वो जो ट्रेडिशनल वे से पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है, उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो ओवरकम करने के लिए हम MapReduce यूज करते हैं. तो MapReduce इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल and it is also used for efficient processing in parallel and distributed parallel over large data set in a distributed manner. जो भी डेटा रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक प्लेस पे नहीं रहेगा. The data is first split and then combined to produce the final result. इसमें कैसे होता है प्रोसेसिंग, जो भी डेटा है उसको पहले स्प्लिट किया जाता है और उसको लास्ट में कंबाइन किया जाता है. The libraries for MapReduce is written in so many programming languages with various different optimization. जो भी MapReduce की लाइब्रेरीज है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी होती है, तो हम उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं. The purpose of MapReduce in Hadoop is to map each of the job and then it will reduce it to equivalent tasks for providing less overhead over the cluster network and to reduce the processing power. The MapReduce task is mainly divided into 2 pages. MapReduce task जो है वो 2 pages में divide होता है. फर्स्ट है मैप phase and second है reduce phase. यहाँ पे this is the MapReduce architecture. Client provide job to the Hadoop MapReduce master and जो जॉब है उसको डिफरेंट पार्ट में, वो जो जॉब है उसको हम डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करते हैं. दीज आर दी जॉब पार्ट्स, स्प्लिटेड जॉब पार्ट्स. फिर जो जॉब पार्ट्स है डिफरेंट उसको हम मैप करते हैं और
जो रिड्यूस भी करते हैं, मतलब इसमें 2 मेन पेजेस होते हैं, मैप पेज एंड रिड्यूस पेज, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग. Input data can be mapped and after that reduced, and reduced data can be combined to provide final output. So this is the map reduce architecture. इसका हम एग्जांपल एक देखेंगे तो ये आपको क्लियर होगा कि हम इनपुट कैसे देते हैं और हमें इनपुट से आउटपुट कैसे मिलेगा. नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे उसका. The components of map reduce architecture are client, job, Hadoop MapReduce master, job parts, input data, output data, job tracker and task tracker. यहाँ पे देखो client, job, Hadoop MapReduce master, these are all the components, input data, output data. तो वो क्या होता है? Client means the MapReduce client is the one, मतलब कौन होगा client who brings the job to the MapReduce for processing. Who is client? Client is one who brings the job to the MapReduce for processing. There can be multiple clients available that continuously send jobs for processing to the Hadoop MapReduce manager. What is the job? The MapReduce job is the actual work that the client wanted to do, which is comprised of so many smaller tasks that the client wants to process or execute. So what is the job? Job is the actual work that the client wanted to do, which is comprised of so many smaller tasks. Job में so many smaller tasks रहेंगे और उसके ऊपर client को processing करना रहेगा और execute करना होगा. So that is the job. Hadoop MapReduce master, it divides the particular job into subsequent job parts. This is the Hadoop MapReduce master that divides the particular job into subsequent job parts. मतलब जो job है उसको different subsequent job parts में divide करेगा Hadoop MapReduce master. Job parts means the tasks or sub jobs that are obtained after dividing the main job. The result of all the job parts combined to produce the final output. Input data, the data set that is fed to the MapReduce for processing. Output data means the final result is obtained after the processing. Job tracker, this is the master mode of the MapReduce system, which manages the job and resources in the cluster. The job tracker tries to schedule each map as close to the actual data being processed on the task tracker, which is running on the same data node as the underlying group. And task tracker, these are the slaves. Job tracker is the master node and task tracker is the which node? Slave node. Slave node. Task tracker are the slaves that are deployed on each machine and they are responsible for running the map and reducing tasks as instructed by the job tracker. तो मैप रिड्यूस इसमें 2 टास्क परफॉर्म होते हैं. कौन से नाम में ही सब आता है. 2 टास्क 2 पेजेस होते हैं मैप रिड्यूस. कौन से 2 पेजेस? मैपिंग एंड रिड्यूसिंग. मैप पेज एंड रिड्यूस पेज, ये 2 पेजेस है. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, तो आपके नाम में ही पता चल रहा है मैप एंड रिड्यूस. अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इसमें कैसे जॉब से हमें मतलब डेटा प्रोसेसिंग होती है और कैसे रिजल्ट मिलता है. जैसे हमने अभी देखा हमारा जो मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या होता है. इनपुट जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं स्मॉल पार्ट में. इनपुट जो डेटा है उसको स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं. इनपुट डेटा स्मॉल पार्ट में स्प्लिट होगा.
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर में जब क्लाइंट कोई एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहता है तो वो जॉब प्रोवाइड करता है, मतलब इनपुट डेटा प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डेटा को बाद में हम क्या करते हैं, इनपुट डेटा स्मॉल पार्ट में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद उसकी मैपिंग होती है। यहाँ पे जो है इनपुट स्प्लिट्स एंड मैपिंग, दीज आर द फेज ऑफ स्प्लिट, एंड shuffling and reducer, these are the phases of रिड्यूस। reduce task. Input splits and mapping is the map task, and shuffling and reducer is the reduce task. अभी ये एग्जांपल है, इसमें मैप रिड्यूस कैसे वर्क करता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो इनपुट में क्या लिखा है, वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज गुड, हडूप इज बैड। ओके, ये टेक्स्ट लिखे हैं। अभी हमें क्या करना है, इनपुट स्प्लिट जब भी करेंगे तो उसमें एक ब्लॉक में, मतलब क्या इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स को पहले स्प्लिट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं 3 वर्ड्स को स्प्लिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स देखो, पहले वाले बॉक्स में क्या है, इनपुट स्प्लिट के, मतलब ये जो इनपुट है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो हम एक ब्लॉक में 3 वर्ड लेंगे इक्वल पार्ट में। तो पहले वाले ब्लॉक में क्या आएगा, वेलकम टू हडूप। ये 3 वर्ड आ गए। सेकंड ब्लॉक में क्या आएंगे, नेक्स्ट 3 वर्ड्स कौन से हैं, क्लास हडूप इज थर्ड ब्लॉक में नेक्स्ट 3 वर्ड्स आएंगे कौन से, गुड, हडूप इज। ओके। अभी 3 वर्ड बचे क्या, रिमेनिंग जो है नहीं, वन ही बचा। ओनली 1 बचा, तो वो आएगा फोर्थ ब्लॉक में, क्योंकि हम जो भी हमारे पास इनपुट है उसको इक्वल वर्ड में स्प्लिट कर रहे हैं। तो स्प्लिट किया 3 के, तो 3 बॉक्स हो गए और एक जो है वो लास्ट बॉक्स में चला जाएगा। तो ये ऐसे हमने उसकी स्प्लिटिंग कर स्प्लिटिंग होने के बाद में हमें मैपिंग करनी है, जो भी इनपुट स्प्लिट है उससे हम मैपिंग करेंगे। अभी मैपिंग कैसे करेंगे कि हर एक वर्ड कितने टाइम ऑकर हो गया, कितने टाइम उसका ऑकरेंस है। तो देखो फर्स्ट जो बॉक्स है इनपुट स्प्लिट बॉक्स, उसके रिलेटेड मैपिंग, मतलब 4, हमने इनपुट को 4 पार्ट में स्प्लिट किया, तो हमारे मैपिंग में कितने बॉक्स रहेंगे, मैपिंग में भी 4 बॉक्स है, 4 ब्लॉक है। यस मैम। तो उसमें हमें क्या करना है, हर एक वर्ड, ईच वर्ड कितने टाइम ऑकर हुआ वो लिखना है। तो सपोज पहले पहले वाले बॉक्स में देखो, उसके आगे जो ब्लॉक है उसमें वेलकम जो है वो कितने टाइम ऑकर हुआ है, वन टाइम। 1 टाइम, इसलिए वेलकम डॉट 1 लिखा, वेलकम कॉमा 1। वो वेलकम वर्ड जो है 1 टाइम ऑकर हुआ, इसलिए वो आया वेलकम कॉमा 1। 2 वर्ड कितने टाइम ऑकर हुआ, वन टाइम। 1 टाइम, इसलिए हमने वहां पे लिखा 2, 1। हडूप वर्ड कितने टाइम ऑकर हुआ, वन। 1 टाइम, इसलिए वहां पे क्या आया, वो ब्लॉक में वन। हडूप कॉमा 1। वैसे ही हर एक ब्लॉक के लिए मैपिंग करना है। सेकंड जो ब्लॉक है इनपुट स्प्लिट का, क्लास हडूप इज, तो उसमें मैपिंग कैसे होगी, उसमें कैसे मैपिंग होगी, ऊपर वाला आपको मैपिंग समझ में आई कैसे करना है इनपुट स्प्लिट से, बाकी लोग कुछ कर रहे हैं, मैपिंग समझ में आई क्या सबको? यस मैम। तो सेकंड ब्लॉक में क्या आएगा, क्लास डॉट वन, हडूप डॉट वन, इज डॉट वन। हाँ डॉट नहीं है वो कॉमा है। थर्ड ब्लॉक में क्या आएगा, गुड कॉमा वन, हडूप कॉमा वन, इज कॉमा वन। और लास्ट ब्लॉक में एक ही वर्ड है, वो एक ही टाइम ऑकर हुआ है, इसलिए वो आएगा बैड कॉमा 1। ये हो गए इनपुट स्प्लिट्स एंड मैपिंग। तो दिस इज द स्प्लिट फेज। नेक्स्ट जो है
या मैप फेज। और उसके बाद मैपिंग होने के बाद हमें क्या करना है, शफलिंग एंड रिड्यूसिंग, दैट इज द रिड्यूस टास्क। तो शफलिंग में जैसे पहले वाले इसमें देखो, वेलकम 1, 2 1, हडूप 1। अभी वेलकम उसमें कितने वर्ड्स है? 1, नहीं, पहले वाले मैपिंग ब्लॉक में कितने वर्ड्स है टोटल? कौन 3, से वर्ड्स है? वेलकम, टू एंड हडूप। अभी वेलकम जो वर्ड है, बाकी कोई बॉक्स में है क्या प्रेजेंट? रिमेनिंग जो ब्लॉक है उसमें प्रेजेंट है क्या वेलकम वर्ड? नो मैम। नहीं है। इसलिए वो ब्लॉक का हम जब स्प्लिटिंग करेंगे तो देखो वेलकम 1, तो ये वहां से लास्ट में आपको एक ब्लॉक दिख रहा है वेलकम 1, लास्ट में शफलिंग में लास्ट में देखो। यस मैम। हाँ, तो वो एक ही टाइम स्प्लिट होगा। उसके बाद 2 जो है वो भी ओनली 1 टाइम है, इसलिए एक ब्लॉक होगा उसमें 2 1 होगा। और हडूप देखो, अभी हडूप 1 जो है वो बाकी और कोई ब्लॉक में है? यस मैम। हडूप बाकी के रिमेनिंग 2 ब्लॉक में है। तो यहाँ पे देखना आपको, आप हडूप 3 टाइम्स हमने शफल कर दिया, मतलब बाकी के भी ब्लॉक का हडूप को हमने एक जगह पे ले लिया। तो फर्स्ट जो ब्लॉक है मैपिंग का उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो हडूप जो है बाकी के भी 2 ब्लॉक में है, तो वो वहां पे शफल हो गया। और बाकी के जो है 1 1 टाइम है, टू एंड वेलकम, तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब एक एक ही बार आएगा। वैसे ही क्लास 1 एक ही टाइम है, तो ये आ गया इधर क्लास 1। हडूप 1 तो यहाँ पे मिक्स हो गया। ईद 1 कितने टाइम्स है? वो ब्लॉक में 1 टाइम, और कोई ब्लॉक में है? यस मैम। इसलिए देखो ये ब्लॉक यहाँ पे ईद 1 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद गुड 1 एक ही बार है, हडूप 1 इधर ऑलरेडी हमने मर्ज कर दिया। ईद 1 यहाँ पे मर्ज हो गया। बैड 1 जो है एक ही बार है, तो यहाँ पे शफल हो गया। तो दिस इज द शफलिंग। शफलिंग होने के बाद में हमें क्या करना है, रिड्यूस। तो रिड्यूस फेज में जैसे बैड 1 एक ही बार है, तो बैड 1 एक ही टाइम आएगा, क्लास 1 एक ही टाइम आएगा, गुड 1 एक ही टाइम आएगा। अभी हडूप 1 जो है वो कितनी बार है? 3 बार। इसलिए उसके आगे जो बॉक्स है उसमें क्या आया, हडूप कॉमा 3, 3। नेक्स्ट है ईज हाउ मेनी टाइम्स है प्रेजेंट है? 2 टाइम्स। इसलिए वहां पे बॉक्स में आया ईज कॉमा 2, 2 कॉमा 1 1 टाइम्स प्रेजेंट है, वेलकम कॉमा 1 1 टाइम्स प्रेजेंट। तो दिस इज द रिड्यूसर, मतलब जहाँ पे 3 टाइम्स है उसको हमने रिड्यूस करके एक ही बार लिखा। ये हो गया रिड्यूसर फेज। और रिड्यूसर फेज होने के बाद में लास्ट में ये जो है रिड्यूसर के आउटपुट, उसको हमें कंबाइन करना है, दैट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द इनपुट। ये सभी जो बॉक्स है वो कंबाइन होंगे एक इसमें। अभी यहाँ पे देखो बैड 1, क्लास 1, गुड 1, हडूप 3, ईच 2, 2 1 and welcome 1. This is the final output of this input. So this is the example of MapReduce where how data can be processed. तो ये एग्जाम्पल समझ में है सबको? एग्जाम्पल समझ में आया क्या? यस मैम। ये जो एग्जाम्पल देखा उसमें डेटा गोज थ्रू the following pages of MapReduce in big data, that is input split, mapping, shuffling and reducing. Input split में क्या होता है, an input to a MapReduce in big data job is divided into fixed size pieces called input splits. Input split is a chunk of the input that is consumed by a single map. Mapping is, this is the very first phase in the execution of MapReduce program. In this phase, data in each split is passed to a mapping function to produce output
values. And in our example, a job of mapping phase is to count the number of occurrences of each word from the input splits and prepare a list in the form of word, comma frequency. अभी हमने यहाँ पे लिखा था इनपुट स्प्लिट में ये वर्ड, कॉमा फ्रीक्वेंसी मैपिंग में. नेक्स्ट है शफलिंग. This phase consumes the output of mapping phase. Its task is consolidate the relevant record from mapping phase output. In our example, the same words are clumped together along with their respective frequency and reducing it. In this phase, output values from the shuffling phase are aggregated. This phase combines values from shuffling phases and returns a single output value. In short, this phase summarizes the complete database. So this is the output map reduce task. Bad one time occur हुआ था, class one time occur हुआ, good also occur one time, Hadoop occur 3 times, is occurs 2 times, two occurs 1 time, and welcome occurs 1 time. So this is the output of MapReduce task. So this is the example of MapReduce, how it can process the data, big data. Okay, this is all about the MapReduce architecture and example of MapReduce data processing. सबको समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि किसी का भी ध्यान नहीं है शायद आज. समझ में आया ये? मैम इसका प्रोग्राम किसमें करना पड़ेगा? MapReduce की जो लाइब्रेरीज है वो मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं हम. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका भी देखना है. हमारा नेक्स्ट मतलब हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें इसकी प्रोग्रामिंग भी है, आर लैंग्वेज में भी है. ये देखो सेकंड यूनिट का जो डेटा, लर्निंग द डिफरेंट वेज टू राइट MapReduce इन आर लैंग्वेज. इसमें हमें आर लैंग्वेज में कैसे MapReduce प्रोग्राम लिखना है तो वो भी पढ़ना है ये सेकंड यूनिट में. ये एग्जांपल है MapReduce, जस्ट हमने बेसिक देखा MapReduce क्या है और MapReduce का आर्किटेक्चर क्या है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बिग डेटा पे प्रोसेसिंग MapReduce में कैसे होती है. उसमें 2 मेन पेजेस होते हैं, वो 2 पेजेस के थ्रू प्रोसेसिंग होती है. कौन से पेजेस है ओम? कौन से पेजेस है? ये 2 पेजेस, मैप पेज एंड रिड्यूस पेज. वही है, इसलिए ये एग्जांपल लिया था कि कैसे डेटा प्रोसेसिंग होगा, मतलब इनपुट होगा तो उससे कैसे, ये स्मॉल एग्जांपल, ऐसे बिग डेटा पे प्रोसेसिंग होता है यूजिंग MapReduce. इसका जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो हमें पढ़ना है. ओके ओम? मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी. इसकी जो प्रोग्रामिंग है अभी आ रही है क्या आवाज? यस मैम अभी आ रही. हाँ, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो हमें पढ़ना है यूजिंग आर लैंग्वेज. ये दिस इज द बेसिक ऑफ MapReduce. मतलब MapReduce क्या है, MapReduce का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, बिग डेटा की प्रोसेसिंग यूजिंग MapReduce. तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन MapReduce. ऐसे इस वे से, मतलब इसमें 2 मेन पेजेस होते हैं, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग. तो वो जॉब ट्रैकर जो है, टास्क जो है 2 पेजेस में डिवाइड होते हैं, मैप पेज एंड रिड्यूस पेज, और उससे हमें जो भी डेटा प्रोसेसिंग है वो पॉसिबल होती है. ओके, जो भी उसका प्रोग्रामिंग है वो हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में. ये यूनिट में है वो कंटेंट. मतलब मैम ये जो फेजेस है वो फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं ना? हाँ, ये ठीक है. जैसे ट्रेडिशनल वे से हम अगर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं.
अभी जो देखे हमने चैलेंजेस इसमें, तो वो ओवरकम करने के लिए मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर यूज होता है। तो वो इजीली मतलब एफिशिएंट वे से प्रोसेसिंग करता है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे। इसमें स्प्लिट करना पड़ता है और उसको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट मिलता है। एक स्मॉल एग्जांपल था, ये आर्किटेक्चर है और ये एक स्मॉल एग्जांपल था कैसे होता है डेटा प्रोसेस, कैसे फाइंड आउट करना है हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो एनालाइज। ओके, इसके जो भी प्रोग्राम है वो भी पढ़ना ही है हमें नेक्स्ट, इसमें हमारे कंटेंट में है ही वो। So this is all about the basics of MapReduce architecture. फिर R यस लैंग्वेज में डिफरेंट ways to write the MapReduce in R लैंग्वेज में पढ़ना है हमें। ओके मैम जावा में होता है क्या? हाँ, JVM भी है ना इसमें, ये देखो अभी तो वो बताया JVM आया था। यस मैम। मैम फिर ये जो प्रोसेसिंग रहती मैम, ये रियल टाइम रहती कि कैसी रहती मैम? रियल टाइम होती है क्योंकि ये किस लिए यूज करते हैं हम, MapReduce, HDFS, ये सभी किस लिए यूज करते हैं, मेन पर्पज क्या है उसका, फॉर प्रोसेसिंग वेरी बिग डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और उसमें जो प्रोसेसिंग होते हैं वो मतलब ये बिग डेटा पे प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, फॉर एनालाइजिंग दैट डेटा, फॉर टेकिंग डिसीजन फ्रॉम दैट डेटा, यही है ना पर्पज एनालिसिस करने का बिग डेटा पे। तो वो यस रियल मैम। टाइम भी उसमें प्रोसेसिंग होते हैं, रियल टाइम रिजल्ट भी आते हैं। ये देखो, task tracker copies the resources to a local machine and launches JVM to map and reduce program over the data। ये हम जावा में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैप रिड्यूस लाइब्रेरी जो है वो यूज कर सकते हैं। बहुत वो भी मैंने पहले ही बताया था, इसमें आया भी था वो। हाँ देखो, libraries for MapReduce is written in so many programming languages with various different optimization। मतलब वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ये लाइब्रेरीज मतलब ये जो भी लाइब्रेरीज है MapReduce की वो यूज कर सकते, इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते फॉर प्रोसेसिंग डेटा, फॉर एनालाइजिंग डेटा। ओके यस मैम। ओके, ये दे देना।